میرے عزیز طلباء و طالبات، آداب عرض ہے۔ پیارے دوستو، سمجھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ دیکھیے بچوں، ہمارا آخری سبق ایک رباعی ہے۔ یہ کس کی لکھی ہوئی رباعی ہے؟ ذرا بتائیے۔ اچھا، امجد حیدرآبادی کا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے پہلے یعنی ہمارا تیسرا سبق ایک رباعی ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے پہلے ہی آپ لوگ رباعی پڑھ چکے ہیں۔ صنف رباعی کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ ذرا سوچئے، رباعی کی کیا کیا خصوصیت ہے؟ لفظ رباعی اربع سے آئے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ واحد، اثنان، ثلاثہ، اربع۔ عربی میں چار کو اربع کہتے ہیں۔ اسے ہمیں پتہ ہے کہ چار مصرے والی نظم کو ہم رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کو دو بیتی بھی کہا جاتا ہے۔ رباعی کا دوسرا نام دو بیتی ہے۔ بیت کیا ہے؟ شعر ہے، وہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ شعر کو عربی میں بیت کہتے ہیں۔ ایک بیت میں دو مصرے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں، یعنی رباعی میں دو شعر مطلب چار مصرے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالجملہ چار مصرے والی نظم کو ہم رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کا دوسرا نام دو بیتی ہے۔ سمجھا ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہے، رباعی کی اور کیا کیا خصوصیت ہے؟ ہاں، رباعی کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری اس رباعی دیکھیے، آپ درسی کتاب میں دیکھیے، دیکھا ہے نا، کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گہر ہوتا ہے، اے بندے ناصبور تیرا ہر کام، کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔ پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ دیکھیے اب، شجر ہوتا ہے، گہر ہوتا ہے اور مگر ہوتا ہے۔ تیسرا لائن تو الگ ہے، یہی رباعی کی خصوصیت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور کیا خصوصیت ہے آپ لوگ بتائیے؟ ہاں، اور بھی ہے جی، ٹھیک بتایا ہے آپ نے۔ رباعی کا موضوعات ہیں۔ رباعی کا موضوع، اس میں کیا کیا آتے ہیں؟ رباعی میں سماجی مسائل آتے ہیں، پند و نصائی ہوتے ہیں، سیاسی مسائل آتے ہیں، بہت سارے موضوعات رباعی میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اور رباعی گو شعرا بتائیے آپ۔ رباعی گو شعرا جگر مراد آبادی ہے، فراق گورکھپوری ہے، انیس ہے، دبیر ہے، یہ سب اردو کے رباعی گو شعرا ہے۔ بہت مشہور ہے، وہ مشہور رباعی گو شعرا ہیں۔ دیکھیے بچوں، ہمارے سبق دیکھیے، یہ ہمارے اس سال کے، ہماری اس درسی کتاب کے آخری سبق ہے۔ میں ایک بار پڑھوں، ذرا غور کیجئے گا۔ کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گہر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گہر ہوتا ہے، اے بندے ناصبور تیرا ہر کام، اے بندے ناصبور تیرا ہر کام، کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے۔ کیسے؟ کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے، ایسا کہنا چاہیے۔
समझा है ना आपको उसका मतलब समझे तो आप ऐसे कहेंगे कुछ देर में होता है मगर होता है, ठीक है ना। अच्छा, तो हम इसकी मतलब की तरफ बढ़ते हैं। ज़रा गौर कीजिए और दरस किताब में गौर से देखिए आप। कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है। दोस्तों, क्या है बीज? क्या है? हाँ, सीड है, एक बीज। शजर अब लोग जानते हैं, शजर के माना जी पेड़ है, बहुत अच्छा, पेड़ है। शजर तो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका उर्दू है, इसका माना है अच्छा पेड़ है। कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है, यानी एक बीज शजर होने के लिए कुछ वक्त की ज़रूरत है। हम पौधे लगाते हैं, छोटा, बहुत छोटा है, लेकिन पौधे क्या होते हैं, एक बड़ा दरख्त बन जाती है। एक दिन से आता है ना? नहीं। दूसरे दिन से? नहीं। एक साल से? इस तरह के बहुत ज़माने की ज़रूरत है इसके लिए। इसी तरह शायर कहता है कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है। एक बीज शजर होने के लिए हाँ कुछ वक्त की, कुछ ज़माने की ज़रूरत है। दूसरा लाइन देखिए, कुछ रोज़ में एक कतरा गुहर होता है। क्या है कतरा? कतरा जो है ड्रॉप है, अब लोग जानते हैं ना, पानी का बूंद है एक कतरा। गुहर क्या है? गुहर क्या है? गुहर नहीं जानते? अच्छा, मोती है, मोती। गुहर मोती है, मतलब कुछ रोज में एक कतरा गुहर होता है, मतलब एक ड्रॉप यानी मोती होने के लिए एक ड्रॉप गुहर यानी मोती होने के लिए चंद दिनों की जरूरत है। बहुत जल्द नहीं हो सकते ये। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं हमारे मलयालम जुबान में चिप्पी कहते हैं नाम, चिप्पी। इसके अंदर होने वाले एक ड्रॉप है, पानी का एक बूंद है, ये गुहर होने के लिए बहुत वक्त की ज़रूरत है, चंद दिनों की ज़रूरत है, यही शायर बताते हैं। तीसरा लाइन देखिए, ऐ बंदे ना सबूर तेरा हर काम, ऐ बंदे ना सबूर तेरा हर काम। क्या है बंदा? हाँ, जानते हैं आप, खुदा का बंदा है, ठीक है, हम सब खुदा के बंदे हैं, अबद है, ठीक है। ना सबूर क्या है? ना सबूर सब्र नहीं होने वाला, सब्र नहीं होने वाला है। मलयालम में हम सब्र को क्षमा कहते हैं ना। अच्छा, मतलब आए खुदा के बंदे, कौन सा बंदा है? सब्र होने वाली, सब्र ना होने वाली। तेरा हर काम, तेरा हर मकसद, तेरा हर मुराद कुछ देर में होता है मगर होता है। तुम्हारा हर काम होता है साहब, डरने की कोई जरूरत नहीं। डोंट वरी, यू डोंट वरी, डरने की जरूरत ही नहीं, वो होता है। कैसे होता है? कुछ देर में होता है, तो अब वेट करना है, इंतजार में रहना है, यही सबक है यहाँ शायर का, ठीक है। सब कुछ होता है मगर होता है। तो मैं समझता हूं आप लोग इसका मतलब समझ चुके हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इस रुबाई बहुत तरन्नुम के साथ गा सकते हैं ना आप? गा सकते हैं तो आप लोग गाइए। कैसे गाते हैं? कुछ वक्त से एक बीज शजर होता है, कुछ रोज में एक कतरा गुहर होता है, आए बंदे ना सबूर तेरा हर काम, कुछ देर में होता है मगर होता है। वो कैसे तरन्नुम से? वो तो तहत लफ्जी है, मैंने जो अभी पढ़ा है वो तो तहत लफ्जी है, तो अब तरन्नुम से गा सकते हैं ना ये। अच्छा, आप लोग मेरे साथ दोहराने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैं तो कोशिश करूँगा। पढ़िए। कुछ वक्त
وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے، آئے بندے نا صبور تیرا ہر کام. وہ کیسے پڑھنا ہے ادھر، مطلب آپ لوگ سمجھے ہیں نا، تو پڑھیے. اے بندے نا صبور تیرا ہر کام، کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. کیسا ہے؟ میں تو گانے والے نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ دہرائیں گے. اور ایک بار پڑھنا ہے نا. اچھا پڑھیے. کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے. پڑھیے. کچھ وقت سے ایک بیج شجر ہوتا ہے، کچھ روز میں ایک قطرہ گوہر ہوتا ہے، آئے بندے نا صبور تیرا ہر کام، کچھ دیر میں ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے اس درسی کتاب میں چند قواعد ابھی باقی ہیں، گرامر کا حصہ ابھی باقی ہے. تو میں آپ کو چند قواعد یعنی گرامر کا پارٹ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ذرا آپ درس کتاب میں دیکھیے. صفت. بچوں ذیل کی عبارت پر غور کیجیے. گزشتہ 2 سال کے اندر کوئی صبح کوئی شام مجھ پر ایسی نہیں گزری جس میں میں نے گورنمنٹ کے مظالم کا اعلان نہ کیا ہو. میری عمر 18 برس کی تھی جب میں نے زندگی کا بہترین حصہ یعنی عہد شباب صرف اسی مقصد کے عشق میں قربان کیا ہے. یہ تو میری زندگی کا دائمی مقصد ہے. اس عبارت میں گزشتہ 2 18 بہترین دائمی وغیرہ چند ایسے الفاظ ہیں جو اس کے بعد آنے والے اسماء جیسے شام، برس، حصہ، مقصد وغیرہ کے اوصاف ظاہر کرتے ہیں. عموماً کسی اسم کے ساتھ اس کی خوبیاں یا خامیاں ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو صفت کہتے ہیں. ذرا غور کیجیے. اس پیراگراف میں آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا گزشتہ 2 سال ہے. یہ سال کی صفت ہے گزشتہ. اسی طرح 2 18 بہترین. کیا ہے بہترین؟ بہترین حصہ ہے. تو دائمی وغیرہ چند ایسے الفاظ ہیں نا، چند ورڈز ہیں جو اس کے بعد آنے والے اسماء کی، اس کے بعد ہونے والے یا آنے والے اسماء کی، جو اس کے بعد آنے والے اسماء جیسے شام، برس، حصہ، مقصد وغیرہ کے اوصاف ہیں اس کے صفت ہیں. صفت کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹیو کہتے ہیں نا، اس کے ایڈجیکٹیو ہے، اوصاف ظاہر کرتے ہیں. عموماً کسی اسم کے ساتھ، کسی ایک ناؤن کے ساتھ اس کی خوبیاں اور خامیاں ظاہر کرنے کے لیے، اس کی اچھائیاں اور برائیاں، خوبیاں اور خامیاں، اچھائیاں یا برائیاں ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو صفت کہتے ہیں. تو ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ صفت کیا ہے؟ صفت وہ ہے ایک اسم کے اوصاف ظاہر کرتے ہیں، یعنی ایک اسم کے خوبیاں یا خامیاں ظاہر کرنے کے لیے صفت استعمال کرتے ہیں. یہاں دیکھیے، غور کیجیے آپ. صفت کی 5 قسمیں ہیں. صفت ذاتی ہے، ایک صفت ذاتی ہے. مثالیں دیکھیے: اچھا، برا، دلکش، خوبصورت، بڑا. یہ سب اسماء کی صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے. اچھا ہے، مثال بتائیے آپ لوگ. اچھا لڑکا ہے.
अच्छा घर है, बता सकते हैं नाम। बुरा, बुरा है, वो बुरा है। दिलकश, ओह बहुत दिलकश है वो, है ना, ये घर बहुत दिलकश है। खूबसूरत है, ये फूल जो है बहुत खूबसूरत है। बड़ा, ये मस्जिद जो है बहुत बड़ा है, बड़ा है। ये सब औसाफ हैं, सिफत हैं। तो जैसे अल्फाज एक चीज़, शख्स या जगह की, चीज़ की हो, जो शख्स की हो या जगह की हो, ज़ाती सिफात बयान करते हैं, उसके ज़ात के सिफात बयान करते हैं। दूसरा देखिए, सिफत निस्बती। बंगाली, पठानी, जंगली, देहाती। कौन है बंगाली? हाँ, बंगाल में रहने वाले को बंगाली कहते हैं। और पठानी, पठान वाला है, उसको पठानी कहते हैं, है ना। तो आप लोग आदिवासियों को सुने होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? जंगली है, जंगल में बसने वाले को जंगली है। ये सब क्या है? ये निस्बती है, सिफत निस्बती है। बंगाल में रहने वालों को बंगाली कहना, उसको हम कहते हैं या निस्बा कहते हैं उसको। वो या है आखिर में, वो निस्बा का या है, तो सिफत निस्बती है। देहाती जैसे अल्फाज इस्म के साथ इसके होने वाली निस्बत जाहिर करते हैं। निस्बत क्या है? ताल्लुक़ क्या है? जंगल से ताल्लुक़ हो तो जंगली, बंगाल से ताल्लुक़ हो तो बंगाली, पठान है पठानी, इसी तरह। चलिए तीसरा, सिफत अददी। 1, 2, 3, ये सब अदद है ना, काउंट कीजिए अब। 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये सब अदद है। 10 है, 20 है, 1000 है, करोड़ है, ये सब अदद है, वो तो सिफत अददी है वो। और है दुगना, तीसरा, अंग्रेजी में हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसा कहते हैं ना, ये सब दुगना क्या है? डबल है। तीसरा थर्ड है। ये सब ऐसे भी अस्मा की गिनती बताते हैं। ये अस्मा कितने हैं, गिनती बताते हैं, इसलिए इनको सिफत अददी कहते हैं। ठीक है। 14 देखिए, सिफत मिक़दारी है। 1 किलो, 4 मीटर, 6 लीटर जैसे अस्मा अल्फाज के तोल व नाप बताते हैं। तोल क्या है? वेट है। नाप जो है मेशर है, मेशर है। ये तोल व नाप बताते हैं, इसलिए इनको सिफत मिक़दारी कहते हैं। समझा है ना। 5वां देखिए, सिफत ज़मीरी। ये, वो, तू, आप वगैरह ज़माइर जुमलों में सिफत का काम अंजाम देती हैं। मिसाल के तौर पर, सलीम एक अच्छा लड़का है, फिर हम सलीम नहीं कहते, सलीम एक अच्छा लड़का है, वो हर दिन सुबह उठता है, ठीक है, फिर सलीम नहीं कहते, वो कहते हैं। तो प्रोनाउन है, आप लोग जानते हैं, प्रोनाउन है, ज़मीर है, तो सिफत ज़मीरी कहते हैं। ये, वो, तू, आप वगैरह ज़माइर जुमलों में सिफत का काम अंजाम देती है, इसलिए उनको सिफत ज़मीरी कहते हैं। बच्चों, हम तो सिफत पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है, ये आप लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं। ये सब, ये अल्फाज जो है आप इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, खालिद एक अच्छा लड़का है, ये तो अच्छा सिफत है। ये घर तो बहुत खूबसूरत है, ये खूबसूरत घर की सिफत है, एडजेक्टिव है, वो तो बहुत सिंपल है। तो हमारी इस दरसी किताब में और एक ग्रामर का हिस्सा भी बाकी है, वो क्या है? मुज़क्कर और मुअन्नस है। मुज़क्कर भी है और मुअन्नस है। आप लोग जानते हैं तज़कीर और तनीस, यानी मेल एंड फीमेल। ज़रा आप लोग दरसी किताब में देखिए, तज़कीर व तनीस। बच्चों, ज़ेल की इबारत पर गौर कीजिए। रिटायर होते ही एक आरज़ू मुझे गुदगुदाती रही कि मैं केरला के सारे प्राइमरी, अपर प्राइमरी और हाई स्कूल का दौरा कर डालूं। हर एक स्कूल की हर एक क्लास में जाकर एक मुनासिब नज़म सुनाऊं और थोड़ी देर बच्चों से तबादले ख़याल करूं। सबके लिए हर एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 5-5 मिनट सिर्फ करूं।
और इस तरह स्कूल के सब क्लासों के दौरे ख़त्म करके हेडमास्टर से 2-1 बातें करूं, फिर अगले स्कूल का पता दरियाफ्त करके इसका रुख करूं। देखिए बच्चों, इस इबारत में आरज़ू, स्कूल, क्लास, नज़्म, देर, मिनट, दौरा, बात, पता वगैरह चंद अस्मा हैं जिनमें मुज़क्कर और मुअन्नस भी हैं। किन किन अल्फाज हैं? आरज़ू, स्कूल, क्लास, नज़्म, देर, मिनट, बात, पता। ये सब क्या है? अस्मा हैं जिनमें मुज़क्कर और मुअन्नस भी है। चंद मुज़क्कर है और चंद मुअन्नस। जानदारों की तज़कीर व तनीस की पहचान आसान है। जानदार जो है, आप लोग जानते हैं, जीवन उल्ला वस्तुकल। इसी तरह जानदारों की तज़कीर व तनीस बहुत आसान है पहचानना। उर्दू में बेजान चीज़ों की तज़कीर व तनीस भी होती है। उर्दू में क़वाइद के तौर पर बेजान चीज़ों की तज़कीर व तनीस भी होती है। इसकी पहचान ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर किताब है। किताब मुज़क्कर है या मुअन्नस है? बताइए आप। अच्छा, किताब मुअन्नस है। किताब मुअन्नस है, इसलिए हम क्या कहते हैं? मेरी किताब है। मेरी किताब। क्यों? किताब मुअन्नस है, लेकिन कलम मुज़क्कर है, इसलिए हम बताते हैं मेरा कलम, ये मेरा कलम है। क्यों? कलम मुज़क्कर है। उर्दू में बेजान चीज़ों की तज़कीर व तनीस भी होती है। कलम मुज़क्कर या मुअन्नस है? क़वाइद के तौर पर कलम मुज़क्कर है, किताब मुअन्नस है। इसकी पहचान ज़रूरी है। तो आपको एक शक होगा, क्यों है? ये क्यों है? किताब मुज़क्कर और मुअन्नस जानने की ज़रूरत क्या है? वही बताते हैं ताकि हम जुमलों को सही तौर पर इस्तेमाल कर सकें। जुमलों को सही इस्तेमाल करने के लिए ये मेरा है या मेरी है, इसी तरह जुमलों को सही तौर पर इस्तेमाल कर सके हमें। इसके चंद कायदे हस्ब ज़ैल है। तमाम ज़बानों का नाम मुअन्नस है। इस दुनिया के तमाम ज़बानों का नाम मुअन्नस है। समझा है ना आपको? ज़बान जो है लैंग्वेज है। उर्दू है, मलयालम है, अरबी है, अंग्रेज़ी है, तमिल है, कन्नड़ा है, वो सब मुअन्नस है। तो आप लोग सुने होंगे मेरी प्यारी ज़बान उर्दू। उर्दू ज़ुबान मुअन्नस है। लफ्ज़ उर्दू मुअन्नस है, ऐसा बताना चाहिए। किताबों के नाम उमूमन मुअन्नस होते हैं। सारी किताबों के नाम, बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, आप लोग जानते हैं, अबुल कलाम आज़ाद का गुबारे खातिर है, ये सब किताबों के नाम है ना, ये सब मुअन्नस है। और क्या है? दिनों और महीनों के नाम उमूमन मुज़क्कर होते हैं। दिनों और महीनों के नाम उमूमन मुज़क्कर है। डेज़ है, इतवार, पीर, मंगल, बुध, है ना, ये सब उमूमन मुज़क्कर होते हैं। और महीनों के नाम, है ना, जनवरी है, फरवरी है, ये सब मुज़क्कर है। इसी तरह धातों के नाम उमूमन मुज़क्कर होते हैं। मेटल है ना, लोहंगल, धातों के नाम उमूमन मुज़क्कर होते हैं। और सैयारों और सितारों के नाम उमूमन मुज़क्कर होते हैं। सितारे हैं, प्लैनेट्स हैं, है ना, स्टार्स हैं और प्लैनेट्स हैं। सितारों और सैयारों के नाम उमूमन मुज़क्कर होते हैं। और आखिर देखिए, अलिफ हा पर ख़त्म होने वाले अल्फाज उमूमन मुज़क्कर होते हैं। लड़का आखिर में अलिफ है, वो तो क्या है? मुज़क्कर है। अलिफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज उमूमन मुज़क्कर है। मिसाल के तौर पर लड़का। इसी तरह हा पर ख़त्म होने वाले अल्फाज भी उमूमन मुज़क्कर है। उम्दा। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम इस साल के पूरे असबाक, यानी हमारे दरस किताब के पूरे असबाक हम ख़त्म किए हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छी तरह
کامیاب ہوں گے، اچھی طرح پڑھیں گے اور سب کو بہت اچھے سن رہے ہیں آپ سبھی کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور ہمارا اس کلاس میں ابھی ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.